Hello students, welcome back. Unique Academy 11th and 12th Mathematics BEAD. So in today's lecture, I'm going to start the very important topic for MHT CET, that is mathematical reasoning, mathematical logic. So in this lecture, I'm going to start the PYQs, previous year questions of mathematical reasoning or mathematical logic, sir. Okay. So before going to start the problems, let us just discuss brief discussion about mathematical logic. In mathematical logic, which are the concepts we used to solve the problems, sir? Okay, this is a completely conceptual topic, sir. So in mathematical logic, the first statement, uh, we should know about statement, sir. What is actually a statement? Statement क्या होता है? Statement मतलब it is a sentence which is either true or false. We call it as a statement, sir. Okay, statement क्या होता है? एक सेंटेंस को पढ़ के अगर अपन ये सही स्टेटमेंट है, ये सही सेंटेंस है या गलत सेंटेंस है, अगर अपन बोले तो उसको क्या बोलते हैं? एक स्टेटमेंट बोल के बोलते हैं, सर. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया. अब अगर अपन ये सेंटेंस पढ़े तो उसको अपन बोलते हैं ये करेक्ट सेंटेंस है, सर, क्योंकि दिल्ली अपना इंडिया का कैपिटल सिटी है. सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है, सर. तो रामू इज ए गुड बॉय. रामू इज ए गुड बॉय, वी कैन नॉट से इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट, बिकॉज रामू इज ए पर्सन. वी कांट से, अगर वो अपन नहीं बोल सकते हैं रामू अगर एक गुड लड़का है, एक अच्छा लड़का है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन क्या होता है, ये अच्छा बुरा डिफरेंट होता है. इसीलिए रामू इज अ गुड बॉय, वी कैन नॉट से इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट या फॉल्स स्टेटमेंट. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. ओके, स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस अगर अपन पढ़े तो कंपलसरी क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है. अगर ट्रू या फॉल्स नहीं हुआ, नहीं बोल सके, तो वो स्टेटमेंट नहीं कहलाता है. ओके, दैट इज अ स्टेटमेंट. इसके बाद कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करना है, सर. कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब क्या है? दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स को अपन कुछ कनेक्टिव्स के साथ कनेक्ट करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं, सर. ओके, टू स्टेटमेंट्स या टू से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कुछ कनेक्टिव के साथ मिला के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं. वो कनेक्टिव्स क्या है? उसको अपन क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव्स बोल के बोलते हैं. ये लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है? कंजंक्शन. लॉजिकल वर्ड, कनेक्टिव वर्ड इधर एंड है. डिसजंक्शन इधर और. implication. लॉजिकल कनेक्टिव है if then. By implication, the last one is by implication. By implication, which is if and only if. If and only if. इधर and को डिनोट करते हैं रिवर्स v के साथ, और को v के साथ, implication को implies, by implication को by implies, sir. Okay, these are the logical connectives which we discussed in compound statements in mathematical logic, sir. Okay, and one more thing, the truth values of a statement basically denoted by T and F. T means true statement, F means false statement, sir. Okay, and the truth tables of conjunction, disjunction, and implication by implications are. Conjunction truth table says that when two statements are true, then its conjunction is true, sir. When two statements are true, then its conjunction is true, always true. When two statements are false, then its disjunction is false. In rest of all cases it is true, sir. Okay, disjunction truth value is when two statements are false, then its disjunction is false. Rest all cases it is true. Implication, one statement is true and the other statement is false, then its implication is false. In rest all cases it is true. By implication, if both the statements having same truth value, means both are true or both are false, in that case the by implication of the statement is true, and rest all cases it is false. And next, one more thing is negation of a statement to be noted. Negation of a statement. Basically, negation of a statement is denoted by this, sir. Okay, suppose
P statement is given by 2 plus 3 is equals to 5, which is a true statement. Okay, then when you are writing its negation P, then what we should write, sir? We just apply not. Not means if 2 plus 3 is equal to 5 is the statement, then 2 plus 3 is not equals to 5 is its negation statement, sir, which is denoted by false, sir. The truth value of that statement is false. Means if a statement is true, then its negation is always false. If statement is false, then its negation is always true, sir. Okay, next, one more important thing is converse, inverse and contrapositive of a conditional statement, sir. Converse, inverse, contrapositive of a statement, sir. So suppose our statement is P implies Q, sir. Suppose our statement is conditional statement which is P implies Q. Then its converse is denoted by Q implies P, sir. Converse is denoted by Q implies P. Reverse we should write inverse. Inverse means it is negation P implies negation Q. Contrapositive is negation Q implies negation P. So these are the three statements: converse, inverse and contrapositive of a conditional statement. Suppose P implies Q is a statement, then its converse is denoted by Q implies P. Converse we can write it as Q implies P. Okay, inverse we can write it as negation P implies negation Q, and contrapositive we should write it as negation Q implies negation P. Okay, these are the some important concepts which we have to note down, and we should solve the problems, sir. Okay, let us start the problems of first set of problems. See, in your book, the multiple choice questions which comes in the year 2004, sir. MHT CET 2004. Let us discuss these problems. The first problem is, what is the first problem given, sir? U. Two sets are given, two statements are given, U and S and H. Acha, three statements are given, sir. U is set of all days, S is set of Sundays, H is set of holidays. Okay, तीन स्टेटमेंट्स दिया है, जिसमें पहला स्टेटमेंट दिया है यू सेट ऑफ ऑल डेज, यस सेट ऑफ संडेज, एच सेट ऑफ हॉलीडेज. देन वेन डायग्राम फॉर संडे इंप्लाइज हॉलीडे. वेन डायग्राम अपने को लिखना है, वेन डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है. कौन सा स्टेटमेंट को? संडे इंप्लाइज हॉलीडे. संडे इंप्लाइज हॉलीडे, इसको अपने को वेन डायग्राम बनाना है, सर. ऑलरेडी ऑप्शंस में वेन डायग्राम्स दिया है, जिसमें पहला ऑप्शन के अंदर जो वेन डायग्राम दिया है उसको ऑब्जर्व करो, सर. ये फर्स्ट वन, जिसमें दो सर्कल्स दिया है, यू एच. ये बाहर का सर्कल एच से डिनोट किया है, अंदर का सर्कल एस से डिनोट किया है. सेकंड स्टेटमेंट ऐसा दिया है, एस एच यू. थर्ड ऑप्शन ऐसा दिया है, बाहर का सर्कल को एस से डिनोट किया है, अंदर का सर्कल को एच, ये तो यू है. फोर्थ ऑप्शन एस एंड एच इंटरसेक्टिंग पार्ट दिया है, एस एच और यू. अब अपने को कौन सा स्टेटमेंट को दिखाना है, सर? संडे इंप्लाइज हॉलीडे. अगर संडे है, इफ a day is Sunday, then it is holiday. Okay, what is the meaning of this, sir? If a day is Sunday, then it is holiday, because in a week we have अगर week के अंदर अपने को 7 days है, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. अगर दिन संडे है तो कंपलसरी क्या होगा, सर? हॉलीडे होगा. सो संडे है तो हॉलीडे होगा. इसका मतलब साल के अंदर बहुत हॉलीडेज रहते हैं, सर. साल के अंदर बहुत हॉलीडेज रहते हैं. जो हॉलीडेज को कैसे डिनोट किया है? सेट ऑफ ऑल हॉलीडेज को यू से डिनोट किया है. सो ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है हर ऑप्शन के अंदर, वो सेट ऑफ हॉलीडेज है. ओके, विच इज यूनिवर्सल सेट है, सर. ओके, उसमें अपन संडेज एंड हॉलीडेज को क्या कर रहे हैं, सर? सबसेट से डिनोट कर रहे हैं, सर.
संडे को और हॉलीडे को सबसेट से डिनोट कर रहा है. ओके, संडे एक सबसेट है यूनिवर्सल सेट को, एंड हॉलीडे एक, बिकॉज सेट एस डिनोट्स सेट ऑफ हॉलीडेज, एच डिनोट्स सेट ऑफ हॉलीडेज. ओके, यू क्या है, सेट ऑफ ऑल डेज, नॉट हॉलीडेज, सेट ऑफ ऑल डेज. सो ईयर के अंदर जितने भी डेज है वो पूरा डेज को यू से डिनोट किया है, पूरा डेज को यू से डिनोट किया है, पूरे टोटल डेज इन ए ईयर. एंड एच को डिनोट किया है सेट ऑफ हॉलीडेज, और एस को डिनोट किया है सेट ऑफ संडेज. ओके, सो अब कौन सा ऑप्शन, अगर डे संडे है तो वो हॉलीडे होगा. ओके, डे, अगर डे, इफ अ डे इज संडे देन इट इज हॉलीडे. If a day is Sunday, then it is holiday. Set of holidays को किसके साथ डिनोट किया है सर, H के साथ डिनोट किया है. Sundays को S के साथ डिनोट किया है सर. तो यहाँ ये स्टेटमेंट्स को अपन अगर वेन डायग्राम में दिखाना है तो यहाँ दो चीजें याद रखना है. सो यहाँ संडे और हॉलीडे ये दोनों के बारे में डिस्कस करना है सर. हॉलीडेज साल के अंदर बहुत होते हैं, दशहरा हॉलीडेज, दिवाली हॉलीडेज, संक्रांति हॉलीडेज, लाइक हॉलीडेज बहुत होते हैं सर. और उसमें संडे भी आ सकता है, वो हॉलीडेज में संडे भी रह सकता है. इसका मतलब ये जो संडे है हॉलीडे को सबसेट होता है. तो क्लियरली कौन सा पिक्चर में संडे हॉलीडे को सबसेट होता है वो अपना आंसर होगा, क्योंकि संडे है तो हॉलीडे होगा. तो इसीलिए संडे किसको सबसेट होगा सर, हॉलीडे को सबसेट होगा. सो हॉलीडे बड़ा सेट होगा, संडे उसके अंदर सेट होगा. तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर, देखो यहाँ ये तो दोनों संडे और हॉलीडे दोनों डिसजॉइंट बोल के दिखा है, ये तो आंसर नहीं है. संडे और हॉलीडे दोनों इंटरसेक्टिंग पार्ट है, ये भी हॉलीडे नहीं है, क्योंकि संडे यहाँ सबसेट नहीं हो रहा. यहां देखे तो संडे को सबसेट एच है, हॉलीडे है, ये भी गलत है अपना, क्योंकि संडे को सबसेट हॉलीडे नहीं होता, क्योंकि हॉलीडेज बहुत सारे हो सकता है, उसमें संडे एक हॉलीडे हो सकता है. तो इसीलिए अपना आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन ये होगा. क्योंकि देखो हॉलीडेज बहुत है, उसमें संडे एक हॉलीडे होता है, क्योंकि ऑल संडेज सबसेट टू हॉलीडेज होगा यहाँ. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट आंसर. सेकंड वन क्या दिया है, देखो सर सेकंड वन क्या दिया है, पी स्टेटमेंट दिया है, क्यू स्टेटमेंट दिया है. पी स्टेटमेंट क्या है, मैन इज हैप्पी. क्यू स्टेटमेंट क्या है, मैन इज रिच. मैन हैप्पी है, पी स्टेटमेंट है, मैन रिच है, क्यू स्टेटमेंट है. तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ ए मैन इज नॉट रिच देन he is not happy, then he is not happy. क्लियरली दिख रहा है सर. ये कौन सा स्टेटमेंट है, इफ और देन यूज हो रहा है. इफ देन यूज हो रहा है मतलब वो इंप्लीकेशन है. ओके, कंडीशनल स्टेटमेंट है. बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट को अपन किससे डिनोट करते हैं, इंप्लाइज से डिनोट करते हैं. ओके, इंप्लाइज है. और ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है देखो, मैन इज नॉट रिच, पी स्टेटमेंट क्या बोल के दिया है सर, मैन इज हैप्पी. क्यू स्टेटमेंट क्या दिया है, मैन इज रिच. अगर क्यू स्टेटमेंट मैन इज रिच है, मैन इज नॉट रिच क्या होगा सर, नेगेशन क्यू होगा. ओके, नेगेशन क्यू. ही इज नॉट हैप्पी, मैन इज हैप्पी बोल के क्या दिया है, पी. पी स्टेटमेंट मैन इज हैप्पी बोल के दिया है. सो यहाँ ही मतलब मैन इज नॉट हैप्पी बोल रहा है अपन. मैन इज नॉट हैप्पी मतलब क्या होगा, नेगेशन पी हो गया. सो द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ if man is not rich then he is not happy is what, negation q implies negation p. negation q implies negation q कहाँ, negation q implies negation p कहाँ दिख रहा है सर अपने को, ऑप्शन बी में दिख रहा है. तो अपना आंसर क्या है, ऑप्शन बी में है सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 विच इज 2005 MHT CET 2005 स्टेटमेंट है सर. क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक. कौन सा स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है बोल के बोल रहा है सर. स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट होना है तो क्या होना है सर, क्या होना, वो आइदर ट्रू होना या फॉल्स होना सर. तो हुआ तो ही वो लॉजिकल स्टेटमेंट होगा, पहले ही बोला मैं. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है देखो सर, अर्थ इज ए प्लैनेट, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट. अर्थ क्या है, प्लैनेट है. फर्स्ट ऑप्शन. अपने को क्या होना, नॉट अ स्टेटमेंट इन लॉजिक पूछ रहा है सर, तो पहला ऑप्शन तो लॉजिकल स्टेटमेंट है. दूसरा,
प्लैनेट्स आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स, वो भी सही है, प्लैनेट्स आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, ओके करेक्ट है, प्लैनेट्स आर लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट ऑफ -9 इज अ रैशनल नंबर, इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सेंटेंस। फोर्थ वन क्या बोल रहा है सर, आई एम लाइंग, मैं झूठ बोल रहा हूं, ये स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि मैं झूठ बोल रहा हूं स्टेटमेंट क्या है सर, पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। मैं झूठ बोल रहा हूं बोल के वो स्टेटमेंट अपना करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, गलत स्टेटमेंट नहीं है, तो इसीलिए वो लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। सो थर्ड ऑप्शन का आंसर क्या होगा सर, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फोर्थ वन सर, फोर्थ वन क्या बोल रहा है देखो सर, नेगेशन ऑफ P by implies Q। अपने को क्या पूछ रहा है सर, नेगेशन ऑफ, फोर्थ प्रॉब्लम, नेगेशन ऑफ P by implies Q पूछ रहा है सर, ओके। इसका लॉजिकल करेक्ट इक्वेशन क्या होगा, लॉजिकल स्टेटमेंट क्या होगा। ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस दिया है सर, तो अपन डिस्कस देखेंगे पहले। नेगेशन ऑफ P by implies Q क्या होगा सर, P implies Q and Q implies P सर, ओके। नेगेशन ऑफ P बाय इंप्लीकेशन Q का मीनिंग क्या है, P implies Q, P implies Q एंड Q implies P को अपन क्या बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, P बाय इंप्लीकेशन Q बोल के बोलते हैं। सो यहाँ डी मॉर्गन लॉ अप्लाई होगा सर, नेगेशन ऑफ P एंड Q, so we have a formula like this, negation of P and Q is logically equivalent to negation P और negation Q सर। तो अपन इसको क्या बोलते हैं अभी, negation of P implies Q और negation of Q implies P बोल के लिखते हैं सर, क्योंकि ये P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है, इसको डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करना है। negation of P and Q is nothing but negation P और negation Q, okay। and one more formula is there, negation of P implies Q, कंडीशनल स्टेटमेंट का negation logically equivalent to P and negation Q sir, logically equivalent to P and negation Q, this is one more formula. So that's why negation of P implies Q, we can write it as P and negation Q, or negation of Q implies P, using this formula how can we write Q and negation P, Q and negation P. So this is our answer sir, negation of P by implies Q is equal to what, P and negation Q or Q and negation P। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर वैसा, P and negation Q और Q and negation P, B ऑप्शन में दिख रहा है सर। सो अपना आंसर क्या है सर, B ऑप्शन, B इज द करेक्ट आंसर है सर, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ वन देखो सर, फिफ्थ वन, नेगेशन ऑफ, ये फिफ्थ प्रॉब्लम है सर, नेगेशन ऑफ P and Q implies negation P और R। ये एक स्टेटमेंट दिया है, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये P implies ये Q है सर, ओके। इसको क्या पूछ रहा है, नेगेशन पूछ रहा है सर, इसका नेगेशन, ओके। नेगेशन ऑफ P एंड Q implies नेगेशन P और R। इसका नेगेशन लिखना है तो कंडीशनल स्टेटमेंट को नेगेशन, कंडीशनल स्टेटमेंट को नेगेशन क्या बोलता है, P एंड नेगेशन Q है। तो इसको पहले ये प्रॉपर्टी से, ये फॉर्मूला से कैसे लिखते हैं सर, P, this is P and Q and negation Q means this is Q statement, so negation of negation P or R, this is Q, okay। P and negation Q which is negation of P implies Q। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो सर, P and Q and यहाँ डी मॉर्गन अप्लाई होगा सर, नेगेशन ऑफ P और Q फॉर्म, नेगेशन ऑफ P एंड Q क्या है, नेगेशन P और नेगेशन Q है, एंड है तो R में चेंज होगा, अगर और है बीच में P और Q का नेगेशन P एंड नेगेशन Q होगा, ओके, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P विच इज नथिंग बट P, और है तो ये एंड होगा, नेगेशन R है सर, ओके। P एंड Q एंड P एंड नेगेशन R है सर। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है देखो सर अपने को, ऑप्शन सी में दिख रहा है ये आंसर डायरेक्टली, P and Q and P and negation R, okay। So that is the 2005 problems, दो problems दिया है MST CET के अंदर। Next we'll move on to 2006 problems sir।
Next, 2006 model problems we'll discuss. So these are the formulas. ये जो formulas है वो ऐसे ही रख रहा हूं मैं. 2006 के मॉडल प्रॉब्लम्स देखो सर. प्रॉब्लम नंबर 6 क्या दिया है देखो सर. नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ए इज रिच बट सिली. स्टेटमेंट क्या दिया है देखो सर. ए इज रिच, ये एक स्टेटमेंट है, बट सिली. ओके, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है सर. जहां अपने को बट दिखता है वो कंजंक्शनल स्टेटमेंट है सर. कंजंक्शन स्टेटमेंट है. ओके, कंजंक्शन कंपाउंड स्टेटमेंट है. यहां दो स्टेटमेंट्स का कंजंक्शन है. ए इज रिच एक स्टेटमेंट है एंड ए इज सिली अनदर स्टेटमेंट है सर. तो यहां ये P एंड ये क्या है, Q है सर. ओके, इसको अपन क्या पूछ रहा है, नेगेशन. मतलब इसका अपन क्या लेना है अभी, नेगेशन लेना है. सो क्लियरली दिख रहा है नेगेशन ऑफ P एंड Q. डिमॉर्गन लॉ अप्लाई होगा सर. नेगेशन ऑफ P एंड Q. नेगेशन ऑफ P एंड Q का फॉर्मूला क्या है, नेगेशन P और नेगेशन Q है सर. ओके, नेगेशन P और नेगेशन Q. नेगेशन P मतलब क्या होगा सर, A इज रिच P स्टेटमेंट है, उसका नेगेशन A इज नॉट रिच. एंड क्या होगा, और A इज नॉट सिली. ऐसा कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट ऑप्शन में दिख रहा है क्या, देखो सर. A इज नॉट रिच और A इज नॉट सिली. A इज नॉट रिच मतलब A रिच नहीं है तो पुअर होगा, ये सिली नहीं है तो क्लेवर होगा. तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है देखो अपने को, ऑप्शन बी में दिख रहा है. A इज पुअर, नॉट रिच मतलब पुअर. A इज पुअर और A इज नॉट सिली मतलब क्लेवर. A इज क्लेवर. ओके, ऑप्शन डी बी में दिख रहा है सर अपने को आंसर. A इज पुअर और क्लेवर. ओके, नेक्स्ट 7th प्रॉब्लम देखो सर. इसका आंसर बी ऑप्शन है. 7th वन क्या दिया है, ऑल टीचर्स आर नॉट सिंसियर इज रिप्रेजेंटेड बाय. ऑल टीचर्स आर नॉट सिंसियर, सारे टीचर्स सिंसियर नहीं होता. ये जो स्टेटमेंट है उसको अपन किस में लिखना है, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है सर. टीचर्स और सिंसियर टीचर्स दो है. टीचर्स को T से डिनोट कर रहा हूं और सिंसियर टीचर्स को S से डिनोट कर रहा हूं. अगर मेरा स्टेटमेंट्स नॉट इंटरसेक्टिंग है ऐसा अगर दिखा, इसका मीनिंग क्या होगा सर, टीचर्स एंड सिंसियर टीचर्स दोनों डिसजॉइंट है. ओके, वैसा तो नहीं दिख रहा है अपने को. ऑप्शन ए में दोनों इंटरसेक्टिंग है. ऑप्शन ए कैसा दिख रहा है, इसको अपन देखेंगे. ऑप्शन ए ऐसा रह के, ये जो बीच में शेडेड पोर्शन दिख रहा है सर, ये ऑप्शन ए है. बीच में शेडेड पोर्शन दिया है, इसका मतलब क्या होता है सर, शेडेड पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर्स एंड सिंसियर टीचर्स. ओके, टीचर्स एंड सिंसियर टीचर्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है ये. ऑप्शन बी क्या दिख रहा है, टीचर्स सिंसियर टीचर्स. ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है अपने को, ये शेडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर्स आर सिंसियर. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टीचर्स आर सिंसियर, क्योंकि सिंसियर को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहां टीचर्स एंड सिंसियर टीचर्स को कॉम्बिनेशन दिख रहा है. थर्ड ऑप्शन में क्या दिख रहा है, सी ऑप्शन में ये T ये S है. शेडेड किसको दिया है, जस्ट T, ओनली T को दिया है. ओनली T को शेडेड दिया है मतलब ये जो सिंसियर है पूरा बाहर है, सिंसियर को शेडेड ही नहीं है. इसका मतलब क्या है, टीचर्स आर नॉट सिंसियर. ओके, सिंसियर टीचर्स नहीं है, यहाँ टीचर सिंसियर नहीं है. और फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया है, डी ऑप्शन में सिंसियर को सबसेट टीचर्स बोल के दिया है. सिंसियर को सबसेट टीचर्स बोल के दिया है. सिंसियर को टीचर सबसेट बोल के दिया है. अपना सेंटेंस क्या है सर, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल टीचर्स आर नॉट सिंसियर. कहां दिख रहा है, ऑल टीचर्स आर नॉट सिंसियर. यहां टीचर्स कुछ सिंसियर है, यहाँ पूरे टीचर्स
सिंसियर है, यहाँ टीचर्स नॉट सिंसियर है, यहाँ सिंसियर को टीचर सबसेट हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन अपने को सही है? सी ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है टीचर्स आर नॉट सिंसियर, क्योंकि सिंसियर के अंदर शेडेड पोर्शन ही नहीं है, तो इसीलिए अपना आंसर क्या होगा सर? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 8th वन सर, P Q R 3 स्टेटमेंट्स दिया है। P कैसे दिया है? x ग्रेटर देन y, Q y ग्रेटर देन z, R x ग्रेटर देन z। देन विच ऑफ द ऑप्शंस आर रिप्रेजेंट्स इफ? स्टेटमेंट ऐसा दिया है, देखो सर, इफ x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, देन x इज ग्रेटर देन z। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ये तो क्लियरली कंडीशनल स्टेटमेंट दिख रहा है सर। इफ देन मतलब इंप्लीकेशन है, x एंड y ग्रेटर देन z, x ग्रेटर देन z। क्या क्या स्टेटमेंट्स बन के दिया है? x ग्रेटर देन y p स्टेटमेंट है, y ग्रेटर देन z q स्टेटमेंट है, x ग्रेटर देन z r स्टेटमेंट है। तो ये क्या दिख रहा है अपने को? p एंड सिंबॉलिक फॉर्म रिवर्स v q implies r। दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म सर। p एंड q implies r। कहां दिख रहा है अपने को? ऑप्शन सी में दिख रहा है सर। ओके, नेक्स्ट 9th स्टेटमेंट क्या दिया है? देखो सर 2007 में 9th क्वेश्चन, 2007 का क्वेश्चंस में 9th क्वेश्चन देखो क्या दिया है? P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स इन लॉजिक। P स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू दिया है T, Q स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू दिया है लॉजिकली T। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज ट्रू? 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें कौन सा स्टेटमेंट पैटर्न सही है बोल के बोल रहा है? P और Q एंड नेगेशन Q, ये पहला स्टेटमेंट है। B, P और Q implies negation Q, ये दूसरा स्टेटमेंट है। P एंड नेगेशन Q implies Q। D ऑप्शन क्या दिया है? P नेगेशन P एंड Q। ओके, ऐसा दिया है सर। देखो इसका ट्रूथ वैल्यू कौन सा स्टेटमेंट यहां करेक्ट है बोल के बोल रहा है सर। ये चारों में जिसका आउटपुट ट्रू होगा वो अपना आंसर है। तो यहां P और Q का ट्रूथ वैल्यूज दिया है T बोल के। देखो फर्स्ट ऑप्शन का ट्रूथ वैल्यू लिख रहा हूं मैं। P का ट्रूथ वैल्यू T बोल के दिया है और Q का ट्रूथ वैल्यू T बोल के दिया है, एंड नेगेशन Q क्या होगा? फॉल्स। इसका आंसर क्या होता है वो लिखना है, बाद में लिखेंगे। P, T और T implies negation Q, F। नेक्स्ट P, T एंड नेगेशन Q, F implies Q क्या दिया है? T। लास्ट वन नेगेशन P, F एंड Q, T एंड Q, T। ओके, फाइनल आउटपुट देखो सर, T और T। और मतलब डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन कब ट्रू होगा, कब फॉल्स होगा? दो स्टेटमेंट्स अगर फॉल्स है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। सो यहाँ दो स्टेटमेंट्स ट्रू है सर, तो इसीलिए इसका ट्रूथ वैल्यू, और का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगा। और T एंड F लिखना है अभी। एंड कंजंक्शन दो स्टेटमेंट्स अगर ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स है। तो यहाँ तो एक ट्रू एक फॉल्स है, तो इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा सर? फॉल्स। मगर अपने को क्या चाहिए? ट्रू स्टेटमेंट होना। ये तो गलत है। ओके, अब देखो नेक्स्ट और है। और दो स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू T है सर। और कब ट्रू होगा, कब फॉल्स होगा? दो स्टेटमेंट्स फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। यहाँ दो स्टेटमेंट्स ट्रू है तो ये क्या होगा? ट्रू ही होगा। ओके, अब ट्रू और इंप्लीकेशन फॉल्स। पहला स्टेटमेंट P स्टेटमेंट ट्रू है, Q स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इंप्लीकेशन क्या होगा? अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका इंप्लीकेशन क्या होगा सर? फॉल्स होगा। तो ये भी अपना आंसर नहीं है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन देखो सर, सी ऑप्शन, T एंड F implies T। एंड मतलब कंजंक्शन, दो स्टेटमेंट्स ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। देखो यहाँ एंड दो स्टेटमेंट्स ट्रू है तो ही ट्रू होगा, तो फॉल्स होगा, अदरवाइज ये तो फॉल्स है इसका ट्रूथ वैल्यू। फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू, फॉल्स इंप्लीकेशन ट्रू का आंसर क्या होगा सर? इंप्लीकेशन कब ट्रू होगा, कब फॉल्स होगा? पहला स्टेटमेंट ट्रू, बाद में फॉल्स हुआ तो
फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो एफ फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा सर? ट्रू होगा। अपने को ट्रू स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन ट्रू हो रहा है, तो आंसर सी ही होगा। बाद में ये भी चेक करेंगे अपन, एफ एंड टी एंड कंजंक्शन दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये फॉल्स है, दोनों ये फॉल्स एंड टी के बीच में कंजंक्शन चेक करना है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो मेरा आंसर क्या होगा सर? सी ऑप्शन इज अवर आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन सर, 10th वन। टेंथ वन क्या बोल रहा सर? द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसा दिया है देखो सर, इफ x इज 0 then we cannot divide by x. This is the implication, this is what the conditional statement। if then यूज हुआ तो कंडीशनल है, ये p है और ये q होगा सर। तो ये कौन सा स्टेटमेंट दिया है सर अपने को? P implies Q स्टेटमेंट दिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है। इसका क्या लिखना है अपने को? कन्वर्स लिखना है। अभी पहला डिस्कशन में अपन बोले थे कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव। P implies Q अगर एक स्टेटमेंट है तो उसका कन्वर्स क्या होगा? इसका कन्वर्स क्या होगा? Q implies P फॉर्म में रहेगा सर। कन्वर्स क्या होगा? Q implies P फॉर्म में रहेगा। इनवर्स कैसा रहेगा? नेगेशन Q implies नेगेशन P फॉर्म में रहेगा। कंट्रापोजिटिव क्या होगा? नेगेशन Q implies नेगेशन P रहेगा सर। तो मुझे कन्वर्स पूछा है, तो जस्ट अपने को क्या करना है? स्टेटमेंट को रिवर्स फॉर्म में लिखना है। रिवर्स फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हो सर? ऑप्शन में देखो, रिवर्स फॉर्म, इफ वी कैन नॉट डिवाइडेड बाई x then x is 0, Q implies P फॉर्म, Q implies P। Q पहला आना, if से पहला आना, x is 0 इस then के बाद में आना है सर। if we cannot divide by x then x is 0, कहां दिख रहा है सर अपने को? ऑप्शन ए में दिख रहा है। if we cannot divide by x then x is 0 दिख रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका कन्वर्ट स्टेटमेंट क्या होगा सर? ऑप्शन ए में दिख रहा है सर। ओके, नेक्स्ट 11th प्रॉब्लम देखो सर, negation of P and negation Q, logically equivalent to what बोल रहा है। तो यहाँ डिमॉर्गन लॉ अप्लाई होगा सर। नेगेशन ऑफ P एंड ये Q समझे तो नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू व्हाट? नेगेशन P एंड क्या होगा? R में कन्वर्ट होगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन Q होगा सर। इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q क्या होगा सर? Q। सो आंसर क्या होगा सर? नेगेशन P और Q। नेगेशन P और Q, अच्छा क्वेश्चन में दोनों नेगेशन है सर, नेगेशन ऑफ नेगेशन P एंड नेगेशन Q। तो ये क्या होगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन P और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q। सो ये क्या होगा? P, नेगेशन ऑफ नेगेशन P इज P और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q इज Q। सो P और Q कहां दिख रहा है अपने को? ऑप्शन सी में दिख रहा है सर। ओके, नेक्स्ट 12th वन देखो सर, P implies negation P और negation P implies P। ओके, ऐसा कुछ दिया है, ये किसको इक्विवेलेंट है? ऑप्शंस में T implies F, P एंड negation P। ओके, नेक्स्ट T और P, नेक्स्ट T by implication F। ओके, सो मैं पहला एक बताया था फॉर्मूला, नेगेशन ऑफ P implies Q किसको इक्वल होगा सर? नेगेशन ऑफ P implies Q किसको इक्वलेंट होगा? P एंड नेगेशन Q को इक्वल होगा सर। अगर मैं दोनों तरफ नेगेशन अप्लाई किया फिर से, ये क्या बन जाएगा? P implies Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और Q। ओके, P implies Q इक्विवेलेंट टू व्हाट? नेगेशन P और Q को इक्वल होगा। तो देखो यहाँ P implies Q फॉर्म, P implies Q फॉर्म है, तो यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूं मैं, नेगेशन P और Q। सो नेगेशन P और Q मतलब क्या होगा सर? नेगेशन P और Q मतलब क्या है? यहाँ नेगेशन P है और ये क्या होगा सर? नेगेशन P और
ये P implies Q है, दैट इज नेगेशन P और Q, मतलब ये P होगा और P होगा और ये क्या होगा Q, P और P होगा सर, ऐसा P और P। ये P और P तो क्लियरली P हो जाएगा, और नेगेशन P और नेगेशन P, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, T होगा, आइडेंटिटी लॉ, T और P। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर, T और P? सी ऑप्शन में दिख रहा है। अपना आंसर क्या है, ऑप्शन सी है सर। नेगेशन P और नेगेशन P का कंजंक्शन पूछ रहा है। नेगेशन P और नेगेशन P हमेशा किसको इक्वल होता है, ट्रू, टॉटोलॉजी को इक्वल होगा। नेगेशन P और नेगेशन P हमेशा क्या होगा, टॉटोलॉजी होगा। कैसा सर, अगर P स्टेटमेंट TF है तो इसका नेगेशन P क्या होगा, FT होगा सर। फिर अगेन नेगेशन P लिख रहा हूं FT। सो इन दोनों का क्या पूछ रहा है, कंजंक्शन, कंजंक्शन पूछ रहा है। कंजंक्शन क्या होगा सर, अच्छा रिवर्स लिखे हैं सर, देखो इन दोनों का कंजंक्शन, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये FT होगा। FT किसको इक्वल है, नेगेशन P को इक्वल है, इजंट इट? P implies negation P और negation P implies P। अच्छा, P implies negation P और negation P implies P बोल के दिया है, इक्विवेलेंट टू व्हाट? सो ये P implies Q का फॉर्मूला क्या होगा सर, negation P R Q होगा। तो ये क्या होगा, negation P R negation P, और ये क्या होगा, negation P implies P है ना, तो इसका वैल्यू negation P तो P होगा और P होगा, ये तो करेक्ट है। ओके, सो ये T और ये P और P क्या होगा सर, फिर से P होगा, P और P ही होगा सर। ये P TF है तो इन दोनों के बीच में और लिखना है, तो दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, तो ये तो हमेशा P होगा। और ये इसका लॉजिकल वैल्यू क्या होगा सर, ट्रू होगा। ओके, नेगेशन P और नेगेशन P हमेशा ट्रू होगा, नेगेशन P और नेगेशन P ट्रू होगा। तो T और P कहां दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। नेक्स्ट वन, 13th वन, P स्टेटमेंट दिया है राम इज रिच, Q स्टेटमेंट दिया है राम इज सक्सेसफुल, R स्टेटमेंट दिया है राम इज टैलेंटेड। ओके, तीन स्टेटमेंट है। राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राम इज नाइदर रिच नॉर सक्सेसफुल एंड ही इज नॉट टैलेंटेड। राम रिच नहीं है एंड सक्सेसफुल भी नहीं है। रिच नहीं है, सक्सेसफुल भी नहीं है, तो क्या होगा, रिच को अपन क्या बोला है, P बोल के दिया है, रिच, रिच नहीं है बोले तो नेगेशन P, एंड सक्सेसफुल को क्या दिया है, Q। नाइदर रिच नॉर सक्सेसफुल मतलब नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ओके, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। एंड मतलब रिवर्स भी। नॉट टैलेंटेड, राम इज टैलेंटेड R है, नॉट टैलेंटेड मतलब नेगेशन R है। तो तुम्हारा आंसर क्या है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q एंड नेगेशन R। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसका ऑप्शन डी है। इसका ऑप्शन क्या है, सी है सर, इसका ऑप्शन सी है। 14th वन देखो सर, 14th वन क्या दिया है, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सर्क्यूट। अच्छा, एक सर्क्यूट दिया है सर, इसका सिंबॉलिक फॉर्म पूछ रहा है सर। यहां एक स्विच है, यहां एक स्विच है, ये दोनों सीरीज में है। फिर से यहां एक स्विच है, यहां एक स्विच है। ओके, पावर, ये P दिया है, ये P स्विच है, ये Q स्विच है, ये P स्विच है, ये R स्विच है सर। पहले दोनों पैरेलल है। पैरेलल को कैसे लिखते हैं सर, पैरेलल मतलब और। ओके, करंट कब पास होगा, ये स्विच अगर बंद है तो भी करंट जनरेट होगा, ये स्विच और ये स्विच बंद है तो करंट पास होगा। तो पैरेलल, जब दोनों स्विच पैरेलल है उसके बीच में R लिखना है सर। जब दो स्विच पैरेलल है तो उसके बीच में R लिखना है, PR। ओके, अब ये दोनों स्विचेस मिलके कैसा हो गया, P एंड Q। ये P एंड Q है, ये P और Q है, ये PR है, दोनों सीरीज में है तो एंड होगा सर। तो तुम्हारा आंसर क्या है, P और Q एंड PR।
कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? पी आर क्यू एंड पी आर आर, ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए है। सो सर्किट्स के अंदर अगर स्विचेस पैरेलल है तो आर यूज होता, स्विचेस सीरीज में है तो एंड यूज करना है सर। ओके, ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, मगर दोनों सीरीज में है तो इसलिए बीच में एंड है सर। नेक्स्ट 15th वन क्या दिया है देखो सर, नेगेशन ऑफ, अच्छा नेगेशन P इंप्लाइज Q, एक स्टेटमेंट दिया है, इसको नेगेशन पूछ रहा है सर, इसको नेगेशन पूछ रहा है। ओके, नेगेशन ऑफ नेगेशन P इंप्लाइज Q, एज वी नो नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q क्या होगा सर? P एंड नेगेशन Q है, तो इसका लॉजिकली ये क्या होगा सर? नेगेशन P, P मतलब नेगेशन P है एंड नेगेशन Q है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q कहां दिख रहा है अपने को? ऑप्शन बी में दिख रहा है, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा सर, ये P स्टेटमेंट है, ये Q स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन, तो आंसर क्या होगा? P एंड नेगेशन Q, P एंड नेगेशन Q मतलब P नेगेशन P है एंड Q को नेगेशन आता, नेगेशन Q है। ओके, नेक्स्ट 16th वन, P एंड Q और Q डैश एंड P is equivalent to what बोल के बोल रहा है सर? P एंड Q और Q डैश एंड P। ओके, Q डैश एंड P बोल के दिया है सर। तो देखो इसको कैसा लिख रहा हूं मैं, P एंड Q और Q डैश एंड P को P एंड Q डैश बोल के लिख सकते हैं सर। ओके, तब इसका लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से P एंड Q और Q डैश होगा सर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, P एंड Q और Q डैश है, Q और Q डैश है, Q डैश इज नथिंग बट नेगेशन P है सर। तो यहां से P एंड Q और Q डैश, Q और Q डैश हमेशा T होगा, टॉटोलॉजी। ओके, Q और नेगेशन Q टॉटोलॉजी होगा सर। अब P एंड नेगेशन P एंड T इज इक्विवेलेंट टू P, क्योंकि P क्या है? TF है, T तो हमेशा T है, ट्रूथ वैल्यू, दोनों का कंजंक्शन दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये TF होगा, किसको इक्वल हो रहा है? P को इक्वल हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? P होगा सर। P मतलब कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है अपने को? B ऑप्शन में दिख रहा है। सो 16th वन का आंसर क्या है? B ऑप्शन है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इन टुडेज क्लास, टुडेज लेक्चर के अंदर अपन 2009 तक कंप्लीट किया है। ओके, PYQs अगला लेक्चर में 2010 से स्टार्ट करेंगे सर। ओके, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।